Very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back and Merry Christmas to all of you. कोलिजन्स का लास्ट जेई नीट लेक्चर है आज. हमने लास्ट टाइम कोलिजन्स को देखा था. इलास्टिक कोलिजन किया था, इनइलास्टिक कोलिजन किया था, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन किया था. आई थिंक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी देखा था. तो आखिर की जो बची हुई चीजें हैं उनको देखने का वक्त आ चुका है, तो उसको देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अप एंड शुरू करते हैं. सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट डूइंग वर्क, मैं आपको इलास्टिक कोलिजन इन 2 डिमेंशंस का एक आइडिया दे दूं. और ये टिंग टोंग चालू रहेगा आज. ओके, सो दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन 2 डिमेंशंस. हमने इसको बोर्ड में भी देखा था एंड इट इज एज सिंपल एज इट लुक्स. बस एंगल वगैरह का देखना होता है. So suppose this is a body, this is body 1, moving with a speed, let us say u1, mass is m1. It is going and striking another stationary body 2, जिसका mass है m2. अरे and this is stationary. And 2-dimensional collision में क्या होता है कि दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल let us say 1 वाला इधर गया, let us say speed is v1 and the angle made by this velocity with the x-axis is theta1, and 2 वाला कहीं यहां गया, speed let us say is v2 and the angle it makes with the x-axis is theta2. As I always said, कोई भी टाइप का collision हो, the linear momentum is always conserved. So as linear momentum is conserved, that means initial mom, that is momentum before collision, is equal to final momentum, that's momentum after collision. So यहाँ पे इसका है m1 u1 bar. Now since we are talking about 2 dimensions, so I might take vectors, and इसका u2 bar तो 0 है, तो I'm not taking it. So this is m1 v1 bar plus m2 v2 bar. Okay, this is whole in vector form. अपने को इसको components में लेना पड़ेगा. So let's take components. पहले x कंपोनेंट लेते हैं. सो u1 isn't it totally along the x-axis? This is the x-axis. So m1 u1. अब ये v1 एंगल बना रहा है θ1 विद द x-axis, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा? v1 cos θ1. So this is m1 v1 cos θ1. एंड ये v2 एंगल θ2 बना रहे हैं और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो m2 v2 cos θ2. ऑलराइट, सो जस्ट होल्ड ऑन. हाँ, सो प्लस m2 v2 cos θ2. दिस इक्वेशन नंबर 2. एंड टाइम टू टेक द y कंपोनेंट्स. u1 एंटायरली एक्स एक्सिस पे है, उसका y कंपोनेंट 0 है, तो यहां 0. v1 का y कंपोनेंट इज v1 sin θ1, दैट्स इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन. सो m1 v1 sin θ1 एंड v2 का y कंपोनेंट इज इन द नेगेटिव y डायरेक्शन, सो माइनस m2 v2 sin θ2. Now you will tell me, sir, can we equate both of them? Yes, you can equate both of them. Also, as collision is elastic, so kinetic energy is also conserved. So kinetic energy is also conserved, and as a result initial kinetic energy is final kinetic energy. Initial kinetic energy is half m1 u1 square, and इसकी kinetic energy 1 की final half m1 v1 square. एक बात याद रहे, ये वेलोसिटी में थीटा वीटा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है. And plus this is half m2 v2 square. And utilizing these equations, I think अगर आपको u1 u2 वगैरह दिया हुआ हो, m1 m2 दिया हुआ हो, तो आप इन सब इक्वेशंस को यूज करके you can find θ1 θ2, जो भी कुछ कहा जाए, you can find all these things utilizing all these equations. Okay, ये जो भी equations, कहा हाफ को काट डालूं?
इक्वेशन तो वही बनेगा ना यार, तू हाफ को काटे या ना काटे. Does it make a very big difference? No, it does not. If you are substituting anything, it will not make very big difference. Okay? So हम substitute अगर करेंगे तो फिर जब वक्त आएगा substitute करने का तो हाफ उड़ा देंगे, not a big issue. Okay, that is not a problem. That's a calculative idea. Okay, so this is elastic collision in 2 dimensions. Before I move on, let me tell you one more thing also. ये collisions का एक बहुत important part है. You know, I'm sure आपने ये देखा होगा कि जब भी आप suppose एक बॉल को छोड़ते हैं ऊपर से and जमीन से वो टकराता है, collision ही तो है ये, पर 100% kinetic energy transfer नहीं होती. Now what does that mean? Let me show you what does that mean. Suppose आपने एक बॉल को रिलीज किया है from a certain height. Let us say, so collision with ground. I am calling this collision with ground. Suppose this is the ground and यहां से मैं बॉल छोड़ रहा हूं, let us say point A से, and it is at a height, let us say h from the ground. ये बॉल जैसे ही ठप करके टकराएगा, you will notice that ground उसको impulse देगा in the opposite direction, so this ball will go up. You might have practically noticed कि suppose आप यहां से let us say 10 मीटर से फेंकते हो, छोड़ते हो बॉल को, तो ये बॉल फिर से 10 मीटर पे नहीं आता, ये बॉल आएगा करीबन यहां तक ही, लेट अस से 6 मीटर या 7 मीटर के आसपास तक ही आएगा. ये यो आ रहा है और ये यो जा रहा है. दिस इज कॉल्ड रीबाउंड. तो इसका मतलब है ग्राउंड ने, ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं हुआ. अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता तो जहां से आप छोड़े होते ना, वापिस बॉल उसी हाइट पे आता. बात समझ में आ रही है? अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता तो जहां से आप छोड़े होते बॉल वहीं पे वापिस आ जाता. बट you will see that this does not happen. You have released the ball from 10 meter and after colliding with the ground, it has just gone up to maximum height of 6 meter. इसका मतलब है the collision is not completely elastic. Ground ने थोड़ा बहुत एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिया है. तो what is important here? Trying to find out the coefficient of restitution. क्या ये heights के साथ मैं इस ग्राउंड के कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं? इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव थिंग्स, रेस्टिट्यूशन इन द कोलिजन बिटवीन ग्राउंड एंड बॉल इज E. Yes. सर कभी कभी हम 6 मीटर से उसको फेंकते हैं तो वो ऊपर 10 मीटर ऊंचा भी आता है. That is a very special kind of ball. It is called a bonky ball. Yes, a crazy ball. Crazy ball, yeah. And the most important thing about a crazy ball is it does not obviously obey all the laws of physics. उसमें कुछ उसको बनाने के तरीके में ऐसी कुछ चीजें ऐड कर दी गई हैं which give it an added extra momentum, जिसकी वजह से वो और ऊपर जाता है and stuff like that. And वो बाउंस भी करता है, अलग स्पिन करो तो अलग बाउंस करता है. पहले बाउंस में इतना नहीं उछलेगा पर सेकंड बाउंस में और उछलेगा. You might have seen that. Yes. That's a crazy ball. We are not talking about crazy balls here. We are talking about normal balls. उजांशी को ज्वाइन करो. हाय, ओके. और कुछ करो तो बोल. Okay. So there is a disclaimer here. We are not talking about crazy balls. We are talking about such balls. Okay. ये देख, मैंने यहां से फेंका, दिखाई दे रहा है? बॉल दिखाई दिया? नहीं ना, क्योंकि वो यहां तक आया नहीं, वो यहीं तक आया, यू नो, उससे भी नीचे तक आया. सो वहां चला गया. सो हम ऐसे बॉल्स की बात कर रहे हैं जो फिजिक्स के लॉस को और कोलिजन के लॉस को ओबे कर रहे हैं. ओके, सो दोज आर द टाइप ऑफ बॉल्स वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. ओके, नाउ एज आई सेड, if I call this height h and I call this height h dash, is there a relation between h dash and the coefficient of restitution E?
Yes, there is a relation. Also, it is important कि जिस velocity से ये strike किया, क्या उसी velocity से ये ऊपर जाएगा? Obviously no. अगर उसी velocity से ऊपर जाता तो उतनी हाइट पे वापस आ जाता, पर उतनी हाइट पे नहीं आ रहा है. So that is a very important consideration. तो हमको important यही है कि हम इसका एक फॉर्मूला लाएं. हाँ कर रहा हूं मां, कर रहा हूं. ये ज्वाइनिंग का बहुत लफड़ा रहता है. सो मैं दो फॉर्मूला दे रहा हूं आपको. फर्स्ट, सपोज से द बॉल rebounds one time. Then people look at this. Velocity after rebound, one rebound. V dash is E times V. E is the coefficient of restitution between the ground and the ball. So V dash is E times V, and height after one rebound. मैंने velocity V square is equal to 2GH के जरिए H dash is E square into H. So velocity after rebounding is E times initial velocity. Height after rebounding H dash is E square times initial height. ये तो एक rebound के बाद है. For n rebounds, after n rebounds, क्या होगी उसकी वेलोसिटी और क्या होगी उसकी हाइट? दिस इज ई रेस टू 1. हमको यहां पे रेस टू करना है, बराबर है? ओके. एंड हाइट एच एन इज, अब तुमको समझ में आ गया कि यहां पे ई रेस टू 1 था तो एन रिबाउंड के बाद ई रेस टू एन, ये ई रेस टू. I would want you to jot down these equations immediately. Please ये दो इक्वेशन immediately jot down करें ताकि हम आगे बढ़ सकें अपने काम पे. So velocity after n rebounds Vn is e raised to n times v, and height after n rebounds is e raised to 2n times h. इसका एक क्वेश्चन उठा के मैं करना चाह रहा हूं. मैं निकाल रहा हूं कहां से, व्हाट यू कॉल इट, टरी हंस मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स में से. एंड मैं देख रहा हूं नंबर राउंड 1 का 56. आई वॉन्ट यू टू लुक एट राउंड 1 का 56. आई होप यू आर लुकिंग. हो सके तो एक डायग्राम बनाने की कोशिश की जाए, हो सके तो, नहीं तो मैं तो हूं ना. आई होप आपने इक्वेशंस लिख लिए हैं, एंड एज अ रिजल्ट मैं यहां पे डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा. डायग्राम दिया नहीं है, पर बगैर डायग्राम के आधी चीजें समझ में नहीं आती. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, एंड उसके बाद हम इसका कोलिजन देखेंगे और क्या पूछा है वो बात करने की कोशिश करेंगे. ओके, व्हाट से इट सेज राउंड 1 का 56 ऑन द वे. इट सेज अ टेनिस बॉल bounces down a flight of stairs, striking each step in turn, okay, and rebounding to a height of the step above. The coefficient of restitution is. एक स्टेटमेंट का पूरा सम है, एक स्टेटमेंट का. वैसे समझ में आया नहीं आया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. पहले तो स्टेप्स बना लो. सपोज यहां से आया, ये बॉल आया, डुग 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 यहां आया. अब ये यहां से उछलेगा, बराबर. यहां से उछल के कहां जाएगा, कितनी हाइट पे जाएगा? ओरिजिनल स्टेप की हाइट पे जाएगा, यहां तक. और यहां से फिर कहां आएगा? कैन यू सी दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? टेल मी यू अंडरस्टैंड. ये बॉल यहां आया, ऊपर से आया, यहां टकराया, और उन्होंने कहा था इंग्लिश में कि दिस बॉल रिबाउंड्स टू अ हाइट इक्वल टू द हाइट ऑफ द स्टेप. यहां तक आया, और फिर यहां से वो दूसरे स्टेप पे जाएगा, इधर तक आएगा, फिर यहां से वापस यहां जाएगा,
टेल मी नाउ, डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये यहां आया, अब यहां से रिबाउंड होके वो कितनी हाइट तक जाएगा? इस स्टेप की हाइट तक जाएगा। यहां से फिर वो यहां आएगा, यहां से फिर वापस इस स्टेप की हाइट तक जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा। पीपल, अब समझे आप, मैं सिर्फ ए से बी और बी से सी तक का डायग्राम देख रहा हूं, ए से बी और बी से सी। कोलिजन होने से पहले कंसीडर कोलिजन एट बी। ध्यान से देखें आप, बी पे देखें, कोलाइड होने से पहले कितनी हाइट से बॉल आया था? सपोज हर स्टेप की हाइट ले लो एल, तो बी पे कोलाइड होने से पहले ए से आया ना वो, तो ए से बी तक कितना हाइट कवर किया उसने? एल प्लस एल, 2L। Isn't this the height covered before the collision? Height before collision at B, H is L plus L, which is 2L. And collision के बाद कहां तक जाता है? C तक। B से C कितनी हाइट है? You know, I'll call this. Very good. Height after collision H dash is BC, and how much is BC? L. They have asked you to find the coefficient of restitution. Do you have any equation that relates E, H and H dash? Is that true? We know for single rebound, H dash is E square into H. Okay, H dash कितना है? L, and H कितना है? 2L. So LL cut. So E square is 1 by 2, which leaves me with E. Is this an agreeable idea? भाई इसके लिए डायग्राम का अत्यंत आवश्यक होता है समझना। मैंने ऐसा देखा, और फिर जैसे उसने कहा था ये इधर स्टेप टकरा करके उतना रिबाउंड होता है जितना एक स्टेप की हाइट। अब यहां से मैंने कोलिजन देखा यहां तक का, तो यहां से यहां तक कितना कवर किया उसने? L प्लस L, 2L, और यहां से टकराने के बाद कितना जाता है? L तक। सो मेरा H डैश L है और H 2L है। इज दिस अग्रीएबल पीपल? वी आर गुड। SP15 देख रहा हूं मैं, SP15 देखिए प्लीज, SP15। डायग्राम नहीं होता तो कुछ नहीं होता, डायग्राम नहीं होता तो ख्यालों में खो गए होते कि कहना क्या चाह रहा है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल। मे बी you'll have to read it 3-4 times, imagine some things, and only after imagination you can draw a diagram, and only after you draw a diagram can you intend to do this sum. बाकी नहीं तो ये सम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ओके, सो SP15, यस, व्हाट्स है भाई, क्या कहता? M moving with speed V makes a ball of mass M moving with a speed V makes a head-on collision with an identical ball at rest. So दूसरा M है, उसका इनिशियल स्पीड कितना है? 0। इसका इनिशियल स्पीड कितना है? V। M1 कितना है? M। ओके। The kinetic energy after collision of balls is 3/4 the original kinetic energy. Okay, final kinetic energy is 3/4 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्या मांगता है अपने को? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके डोकी भाई, कैसे किया जाएगा? मैं करूं या आप कर रहे हो? क्या मालूम सर क्या करने का। ये बॉल 1, मास M, स्पीड कितना है? V। ये दूसरा बॉल सेम मास, स्पीड कितना है? 0। ये टकराने से पहले की घटना, टकराने के बाद लेट अस से दिस मूव्स विद द स्पीड V1, एंड दूसरा वाला भी हिल गया होगा, लेट अस से इट मूव्स विद द स्पीड V2। भाई सिंपल एज इट गेट्स।
the momentum, total momentum will be conserved as total linear mom. कोई भी टाइप का कोलिजन होता है, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व ही होता है. सो पी आई, सो एम इंटू वी. मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं M1 U1 प्लस M2 U2. आप ऐसा चाहते हो मैं ऐसा लिखूं? ठीक है चलो. अरे अरे ओके, दिव्यलाल की बात हमने मान ली. ना यहां पे M1 और M2 दोनों M है एंड मोर ओवर U2 कितना है? 0. सो U1 कितना है? V है ना. MV is MV1 plus MV2. Do you think I can take out M? Yes, sir. Okay, thank you so much. V is equal to V1 plus V2. My goodness, is that true? Okay, number 1. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब उन्होंने बोला सेम नहीं है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? अब इसकी तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है. इसकी कितनी होगी? Half mv square. एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी? Half mv1 square plus half mv2 square. एब्सोल्युटली. और हमको उन्होंने बोला है क्या कर दो? Square करके half काट दो. अरे यार, तू हाफ काटने की बात कर रहा है, मैं यहां बहुत कुछ काटने की सोच रहा हूं और तू सिर्फ हाफ पे अटका हुआ है. कमाल है. देखो KF हाफ M ब्रैकेट में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इज 3/4. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? हाफ M V स्क्वायर. हाफ M कट. सो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इज हाउ मच? 3/4 v square. अब मेरे को यहां पे V इज V1 प्लस V2 मिला. यहां पे V1 प्लस V2 द होल स्क्वायर इज 3V स्क्वायर बाय 4. आई थिंक अब आपको V1 और V2 की वैल्यू मिल जानी चाहिए. V की जगह यहां पे V1 प्लस V2 लगा सकते हैं. आई थिंक यू कैन डू दैट. डू यू थिंक यू कैन डू दैट? क्या कर पाओगे? करो, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो. मैं ओके, मैंने यहां पे इसको लगा दिया है. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाना है तो अपने को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन्वॉल्व करना पड़ेगा. तो E इज माइनस, फॉर्मूला सही है, V2 माइनस V1 ओवर U2 माइनस U1. V2 और V1 की वैल्यूज वही. U2 की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस U1 की वैल्यू कितनी है? V. सो माइनस माइनस कट गया. सो V2 माइनस V1 बाई V इज E. मैंने V को यहां ले लिया तो V2 माइनस V1 इज EV. आई थिंक अब वी कैन वर्क थिंग्स आउट. चलो, इन दोनों को यूज करके मैं V1 और V2 की वैल्यूज निकाल सकता हूं. डू यू थिंक आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ? थैंक यू. किसी ने बोला नहीं पर चलो, लेट्स रॉक एंड रोल. दिव्यलाल ऐसे ही कह रहा था सर रॉक एंड रोल करने वाले हम. अच्छा, अगर मैं 1 और 5 को ऐड करूं तो क्या कटेगा? V1 प्लस V2 प्लस V2 माइनस V1. V1 कट जाएगा. V2 प्लस V2 इज V प्लस EV. V2 मिल चुका है श्रीमान. एंड लगे हाथों अब V1 भी मिलेगा. V1 प्लस V2 कितना है? इज V. चल बेटा सेल्फी ले ले रे टा 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 टू. एक काम करते हैं, V को कॉमन लेते हैं एंड 1 माइनस हाफ इज हाफ. तो मुझे मिल गया V1 भी मिल गया. V बाई 2 1 माइनस E. अब कुछ नहीं करना है, 6 और 7 को उठा करके 4 में डाल दो एंड मैटर खत्म करो. या मैं ही डाल दूं आपके लिए? सर आप ही डाल दो ना, आप इतना अच्छा डालते हो. मैं ही डाल दूं? क्या कहना है? हाँ वही. तुम क्यों मेहनत करो, मेहनत मैं ही करता हूं. एग्जाम मेरे को तो देनी है. अरे तुम डालो तो सही.
डाल के देखो तो सही होता है कि नहीं। तुम तो डाले बगैर ही पसीज गए। पुट 6 और 7 इन 4। चल भाई, v1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर तो v/2 1 माइनस ई द होल स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर v2। क्या लगता है भाई, हित मेहता हो पाएगा तुझसे या ना हो पाएगा? या तो यही बोलेगा मुझसे ना हो पाएगा। ये v² बाय 4 कॉमन, 1 माइनस ई को खोल दो जरा स्क्वायर करके, 1 माइनस 2e प्लस ई स्क्वायर, एंड यहां पे खोल दो 1 प्लस ई द होल स्क्वायर को, 1 प्लस 2e। मुझे लगता है v² बाय 4 इज गोइंग टू गो, एंड क्या बचा, माइनस 2e प्लस 2e गियो, 1 प्लस 1 2, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर इज 3। ओ 3 माइनस 2, भाई 3 माइनस 2 कितना होता है? अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, कोइंसिडेंस। पर लगाना है, काटना है, डालना है, तब जाके आंसर आएगा जी। मेहनत करनी पड़ती है। इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाते हो तो बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, काट धोना पड़ता है, काटना पड़ता है, डंठल निकालने पड़ता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। Oh my God, he's got me all। अच्छा, मैं अब दिखाने जा रहा हूं आपको नंबर SP18। SP18 क्या आपके पास है? SP18 मैं इसको उड़ा रहा हूं। SP18 देखेंगे, उड़ा देते हैं जी। SP18 मस्त मस्त चीजें, चकाचक। एंड मैं ये एडवाइस करता हूं हमेशा कि जो भी हमने अभी क्लास में किया है वही सम्स आप घर पे जाके एक बार खुद रिपीट करें। नहीं, इनको देख लेने से कुछ नहीं होता है। तुम इनको देख लो फिर खुद करो, देखो होता है कि नहीं होता है। क्योंकि अगर खुद करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, SP18। आफ्टर परफॉर्मिंग इनइलास्टिक कोलिजन between two identical particles moving with the same speed in different directions, the speed of the particles becomes half the initial speed। ओके, इनिशियल स्पीड को मैं क्या कहूं, u। तो इनिशियल स्पीड इज u। ये इनइलास्टिक कोलिजन है श्रीमान, मतलब दोनों साथ में चलेंगे। ओके, तो अगर दोनों अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू। अच्छा, गिवन फाइनल स्पीड बिकम्स हाफ इनिशियल स्पीड, गिवन v इज u/2, और अलग अलग दिशाओं में से आ रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू बिफोर द कोलिजन। अर्थात ये एक बॉल है, u स्पीड पे आ रहा है, ये कोई दूसरा बॉल है वो भी u स्पीड पे आ रहा है, डुक 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 डुक, ये 1 है ये 2 है, डुक 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 डुक, दोनों यहां टकरा रहे हैं। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2। लेट अस से दोनों के बीचों बीच एंगल है थीटा, लेट अस से। ओके, और अब ये दोनों मिलके, ये कोलिजन के पहले की तस्वीर और कोलिजन के बाद दोनों कुल मिला के चल रहे हैं विद स्पीड v। डू यू अंडरस्टैंड? डायग्राम समझ में आया पीपल? पहला बॉल यहां आ रहा है, डिक 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 डिक, दूसरा बॉल यहां आ रहा है, डिक 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 डिक। ये दोनों सेम स्पीड पे आ रहे हैं, यू यू, और वो यहां आके मिले और टकराए, और टकरा के दोनों सेम स्पीड, इनइलास्टिक कोलिजन है मतलब दोनों चिपक जाएंगे, इनइलास्टिक कोलिजन है दोनों चिपक जाएंगे और दोनों सेम स्पीड पे आगे मूव करेंगे। नाउ इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? ओके, अब हाँ हाँ, यस। ब्लर हो रहा है सर, स्क्रीन ब्लर हो रही है। अब,
हाउ इज इट नाउ? नाउ इट्स ओके. Okay, sir. ओके, सो इसका भी मास m, इसका भी मास m, m. सबसे पहले इनिशियल मॉम. सर अब यहां पे इनिशियल मॉम कैसे निकाला जाएगा? मैं यहां पे इनिशियल मॉम दो तरीके से निकाल सकता हूं, या तो वेक्टर फॉर्म भी ले सकता हूं, और वेक्टर फॉर्म अगर ना लेना हो, यू रिमेंबर देयर वर टू वेक्टर्स a बार एंड b बार, जिसके बीच में एंगल था थीटा. व्हाट वाज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू? Root of a square plus b A square plus b square plus 2ab cos theta. इज दिस एग्रीएबल? सो इन दोनों का रिजल्टेंट इनिशियल मोमेंटम फाइंड करने के लिए मैं ये आइडिया लगा सकता हूं. सो पी आई इज रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर. p1 स्क्वायर, p1 इज मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, p2 इज मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 प्लस 2p1 p2. कैन यू सी दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा. इज दिस ओके पीपल? सर ये नीचे वाला सर थोड़ा ऊपर देखना. तेरे को ये तो दिखाई दे रहा है ना? सर दिखाई दे रहा है रूट के बाद नीचे. रूट के बाद मैंने पी आई इज इक्वल टू रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा, ऐसा लिखा है. ओके सर रिजल्टेंट का है ना सर. हाँ 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 बिल्कुल वही. यहां पे p1 इज mu, p2 भी mu, सो pi इज रूट ऑफ m स्क्वायर u स्क्वायर प्लस m स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2 m4 u4. ए भाई mu कितना होगा? ओके सर. थैंक यू. m स्क्वायर u स्क्वायर प्लस m स्क्वायर u स्क्वायर 2m square a square. 2m square a square cos theta. अब कोई मेरे को बोलेगा सर m स्क्वायर u स्क्वायर कॉमन लेना है तो ले लो. हाँ देखेंगे यार, अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं है. वही है सर. फाइनल मॉम. एनीबडी टेलिंग मी हाउ मच विल बी द फाइनल मॉम? अब ये दोनों संगे संगे चल रहे हैं. m1 plus m2 a. अच्छा m1 प्लस m2, m1 और m2 कितना है? दोनों m है, तो 2mv. एंड हमको दिया गया है v इज u बाई 2, सो 2m इंटू u बाई 2. आओ जो. सो pf मिल गया है mu, आई मीन mu, Yes. by the law of as momentum is conserved. खेल खलास. pm is pi. So mu is root of 2 m square u square ब्रैकेट में 1 plus cos theta. Let's square both sides. So m square u square x square is equal to 2m square u square 1 plus cos theta. m square u square कटा, so 1 by 2 is 1 plus cos theta. oh तो तेरा cos theta जो है माइनस हाफ आ रहा है क्या? नेगेटिव आ रहा है. हाँ सर. नेगेटिव आ रहा है. चलेगा सर बता दो. अरे चलेगा क्या लगा दूं भाई? नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है वो 90 से ज्यादा होगी, या एंगल 90 से ज्यादा होगा. जब भी cos थीटा नेगेटिव आता है, डजंट इट मीन दैट इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट? Yes, sir. सो सेकंड क्वाड्रेंट. cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज हाफ. एंड हाफ किसका? मुझे लगता है इसको उड़ाना पड़ेगा. वैसे आंसर तो आ ही चुका है. cos का 68 जी 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 180 में 60. So 180 minus theta is 60. So theta is 180 minus 60. कितना हो गया सर जी? 120 हो गया सर. 120. क्या बात है, हिसाब किताब अच्छा लगा लेते हो. So theta is 120. चेक करें कृपया, आंसर है क्या? Yes sir. Yes, sir. सही है. ओके हाँ बोल.
पी को रूट में रखा, हाँ, फिर मैंने एंड में दोनों को स्क्वायर कर दिया ना। ओके, मैं करने जा रहा हूं, मैंने SP18 किया, SP18 किया मैंने, यस किया। राउंड 1 का 47, मस्त नंबर है राउंड 1 का 47 भाई। Yes, sir. 1947. अच्छा 1947, जी जी। सर आप एकदम मस्त नंबर है, मतलब मस्त क्वेश्चन, ऐसा बोलते रहता है, ना लगता है कि कुछ खतरनाक होगा। ओह तो मैं आपसे ऐसा बोलता हूँ, अरे गंदा क्वेश्चन है, तो कैसा फील होगा? तो और गंदा फील होगा, है ना? तो सर साफ करके देखना पड़ेगा। हाँ भाई, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, दुनिया में गंदे या अच्छे सोचने जाएंगे तो क्वेश्चन को सुलझा नहीं पाएंगे। जब भी तुम किसी इंसान से मिलते हो, क्या तुम माइंड में ये सोचते हो कि ये गंदा आदमी होगा या अच्छा आदमी होगा? नहीं ना, यू वेट फॉर थिंग्स टू रोल। तुम मुझसे पहली बार मिले तो माइंड में किसी ने तुमको ऐसा बोला था कि ये अच्छा आदमी है या ये बुरा आदमी है? नहीं, तुम मिले एंड आगे आगे चीजें होती गई, फिर पता चलता गया सही है गलत है क्या है करके। तो किसी सम के बारे में मैं कभी कोई राय नहीं बनाता। अगर सम मेरे को करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका मतलब चैलेंजिंग सम है, मेरे दिमाग का उपयोग कर रहा है ये, और वो चाहता है कि मैं और इवॉल्व हूं और कुछ नई नई बातें सोचूं। तो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया इन एनी सम। अगर सम कुछ सिखा के जाता है तो अच्छा है ना, प्रॉफिटेबल है। ओके 47, a small block of mass m moves with a velocity कितना है 5 मीटर पर सेकेंड towards another block of same mass। अच्छा दोनों का मास सेम ही है, mm ही है, placed at a distance of 2 मीटर, ओके, on a rough horizontal surface। फ्रिक्शन आएगा कहीं ना कहीं, आ दिया है। coefficient of friction between the blocks and the ground mu is 0.25। collision between block is elastic, nice to know। and the separation between the two blocks when both of them come to rest is x dash find करना है when both come to rest। सर लास्ट स्टेटमेंट समझना नहीं है। एक बार पढ़ने से तो समझ में नहीं आएगा ना, मैं पहले समझा तो दूं। ये टेढ़ी लाइन है, ये रफ ग्राउंड है, और यहां पे एक ब्लॉक है, कितना मास है? लेट्स से दिस ब्लॉक 1 मास m है, कितनी स्पीड पे मूव कर रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। और 2 मीटर दूर है इस ब्लॉक से, ये दूसरा ब्लॉक है, सेम मास m का, और फिलहाल 0 है, स्टेशनरी। पहली बात, डू यू अग्री बिकॉज द सरफेस इज रफ, यहां आते आते ये जिस स्पीड से 1 वाला इसको टकराएगा वो स्पीड कम हो गई होगी क्योंकि फ्रिक्शन है, यस सर, डिग्री होगी। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वाला है। एंड अब टकराने के बाद कोलिजन इलास्टिक है। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन? डू यू? चलेंगे। हमने ये देखा था, सपोज ये दिव्यलाल है 50 किलो का, मूविंग विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, कोलाइडिंग स्टेशनरी माम एंड कुशल, सेम मास 50 किलो, और ये स्टेशनरी है बंदा। कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटियां क्या हो जाएंगी? सो दिव्यलाल की स्पीड क्या हो जाएगी? 0 एंड कुशल कितनी स्पीड पे जाने लगेगा? 6 मीटर पर सेकंड। इज दिस एब्सोल्यूटली परफेक्ट? कोई शक? कोई शक नहीं ना? दिव्य कुशल का कांड समझ में आया ना आपको? ओके तो अगर एक बंदा 6 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, दूसरा स्टेशनरी है और कोलिजन इलास्टिक है, तो वेलोसिटीज विल गेट इंटरचेंज। पहला बंदा अब 0 हो जाएगा, दूसरा बंदा 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे मूव करने लगेगा।
उसी तरह दोनों के मास सेम है, आप देखिए जरा। सो डोंट यू अग्री स्पीड्स विल गेट इंटरचेंज्ड? मैं इसको V0 कहता हूं। Yes, sir. सो स्पीड्स विल गेट इंटरचेंज। 1 क्या हो जाएगा? 0. हाँ। और 2 क्या हो जाएगा? वो लेके दूसरी स्पीड में है. डू यू अग्री कोलिजन के बाद जो स्पीड्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी? एंड अब जो ये 2 नंबर है, जो ये U1 था, वही स्पीड के साथ ही आगे बढ़ेगा। Yes, sir. आप सर सॉरी, नो सर, वो 5 मीटर पर सेकंड से नहीं जाएगा। you are combining too many things, so don't combine too many things, compartmentalize. First things first, forget all this shit. This is an elastic collision. Do you understand elastic collision between two similar type of masses? यस सर। And when you talk about elastic collision, 1 अगर स्पीड U1 से आ रहा है और 2 को टकरा रहा है जिसकी स्पीड 0 है, तो कोलिजन के बाद 1 की स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। और 2 की स्पीड क्या हो जाएगी? जितनी U1 थी उतनी हो जाएगी। यस सर। इतना समझ में आया? यस सर। अब मैं इसके इर्द और गिर्द फ्रिक्शन लाने की कोशिश करता हूं। सर काहे फ्रिक्शन? क्योंकि दिया हुआ है। अब कोलिजन की बात समझ में आ गई, अब कोलिजन भूल जा। अब मैं तेरे से एक सीधी बात पूछता हूं। अगर कोई बॉडी इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है एंड फ्रिक्शन है 0.25 का, तो यहां तक 2 मीटर कवर करते करते उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? फॉर ब्लॉक 1 इनिशियल स्पीड कितनी है? 5। एंड डू यू नो एक्सेलरेशन इज म्यू इंटू जी? यू रिमेंबर दैट? Yes, sir. ये mg, ये n, एंड सपोज ये एक्सेलरेशन इस तरफ है, माँ किस तरफ होगी? इस तरफ। फ्रिक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ। सो n इज इक्वल टू mg एंड फ्रिक्शन f इज इक्वल टू ma। बट फ्रिक्शन f इज ऑल्सो म्यू इंटू n ना, तो म्यू इंटू mg इज इक्वल टू ma। टच। सो ऑन अ रफ सरफेस what is the retarding acceleration? Mu g. Retarding, do not forget that. जब तक ये समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। कौन सा सर? माइनस म्यू जी समझ में आया? हाँ सर, म्यूजिक समझ में आ गया। क्योंकि बॉडी जा इस तरफ रहा है, एक्सेलरेशन उसको इस तरफ मिल रहा है, फ्रिक्शन इस तरफ रोक रहा है उसको। सो ए इज माइनस म्यू जी, म्यू 0.25, जी इज 10। सो ये कितना हुआ? 2.5 -2.5। कितना डिस्टेंस कवर करने का है? x। तो वहां पहुंचकर 2 मीटर पहुंचकर स्पीड कितनी होगी वो फाइंड करना है। इसको u1 का नाम देते ले। डू यू हैव एन इक्वेशन रिलेटिंग v0 a x एंड यू नो फाइनल स्पीड? v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। तो एक काम करो ना मेरे लिए, कब से बैठे ही हो, ये v स्क्वायर की जगह u1 स्क्वायर कर देते हैं, v0 स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर लगा देते हैं, एक्सेलरेशन की जगह -2.5, x की जगह 2। मुझे u1 की वैल्यू फाइंड करके तो देना जरा। डग 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 डग। कोई है जो दे रहा है या मैं ही दूं? चला हम देत रहे। सर रूट 15 जैसा कुछ नहीं होता वही आता या वो नहीं आता? 2.5 2 जा 5, 5 2 जा 10 एंड -10 + 25 is 15। यस सर, रूट 15। भाई रूट करने मत जाना। मतलब ये जो u1 है, अब वो कोलिजन के बाद ये v2 बन गया। आफ्टर कोलिजन
speeds are U1 becomes U2. exchanged, so final speed of block 1 is 0 and of block 2 is V2 is same as U1. V2 is equal to U1. टन 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 टारा है भाई, चलती है क्या 9 से 12? हाँ सर। चल भाई फिर, बोले शाम हो गया सर। हाँ तो चल फिर, चल जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। अभी अब तुमको ये देखना है ध्यान से कि अब ये स्पीड से, मैं एक्चुअली ये जगह लेने वाला था पर मैं भूल गया, ये स्पीड से ये आगे बढ़ेगा। अभी भी ये फ्रिक्शन वाला ग्राउंड ही है ना, है ना? अभी भी फ्रिक्शन वाला ग्राउंड ही है, उतना ही फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन मिल रहा है -2.5। मैं चाहता हूं इसकी स्पीड 0 कब हो ये फाइंड आउट हो फॉर ब्लॉक 2। ये समझ में आया कि नहीं सर? एनीबॉडी से नहीं सर? नहीं सर। मेरे को पता ही था, मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी। सर इसमें इंग्लिश ज्यादा लिख दिया है इसके। ओ माय गॉड, इंग्लिश ज्यादा लिख दिया है सर। सो फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक 1 is 0 and of block 2 is V2 is U1 is root of 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये रूट ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल स्पीड से चल रहा है। डू यू अग्री? आगे जाते जाते इसकी स्पीड कम होगी और 1 पॉइंट पे आके इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। माय गॉड, माय गॉड, जस्ट चेक दिस आउट। ओके, सो फॉर ब्लॉक 2 इनिशियल स्पीड कितनी है? U1 विच इज रूट 15। रूट 50 फाइनल स्पीड कितनी है? 0। एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी, कितना है माइनस म्यू जी? -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्स डैश कितना ट्रैवल करेगा जरा देखो जरा, 2x इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। बोलो मत करो, बोलो मत करो, सब डालो। आई थिंक आई कैन टेक दिस अप हियर, एकदम चकाचक। सो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज 2ax। v कितना है फाइनल? 0 माइनस रूट 15 का स्क्वायर इज 2। a कितना है? a -2.5 इंटू एक्स डैश। भाई रूट ऑफ 15 का स्क्वायर इज 15, 3 मीटर। माइनस माइनस कट 15/5 and as my man says, check this out, check this out people, agreeable? समझा? पीके ये एक बात है, ये कोलिजन्स वाली बात है, और इसके आगे और इसके पीछे जो हो रहा है वो लॉज ऑफ मोशन वाली बात है। यू अंडरस्टैंड? इससे पहले जो हो रहा है वो लॉज ऑफ मोशन, इसके बाद जो हो रहा है वो लॉज ऑफ मोशन। ये है कोलिजन्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जिस स्पीड से टकराएगा अब स्पीड इंटरचेंज हो जाएगी, तुरंत V2 मिल जाएगा आपको। इलास्टिक कोलिजन है इसलिए, दोनों सेम मास है इसलिए। फेयर इनफ? यस यस। काइनेमैटिक्स नहीं आया सर। क्या क्या नहीं आया? काइनेमैटिक्स। फ्रिक्शन काइनेमैटिक्स में आता था या लॉज ऑफ मोशन में आता था सर? सर उसके बाद हमने ढूंढा ना सर। ओके, वो लॉज ऑफ मोशन के साथ काइनेमैटिक्स भी मिक्स करना चाहता है क्योंकि v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज 2ax, उसको काइनेमैटिक्स नहीं दिया था। बिल्कुल बात है भाई दिव्यलाल, कोई बात ही कोई नहीं। शैल वी मूव ऑन? कोई प्रॉब्लम इस सब में? डू यू अंडरस्टैंड? मैं करने जा रहा हूं अभी, एक काम करते हैं, कोलिजन के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन मिक्स करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, आप लोगों का पता नहीं। मैं देख रहा हूं
मैं देख रहा हूं, मुझे देखने दे। मैं देख रहा हूं राउंड 2 का 16, डायग्राम भी मस्त है एकदम। बाबूराव मस्त है, बाबूराव मस्त है। मास्टर बहुत बड़ा रहेगा। देख के ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो गया ना? नहीं सर। वेरी गुड। अब फंडा वही है, हार्ट अटैक के बाद क्या करोगे? व्हाट नाउ? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, सबकी बुंदी बजाएगी। या तो सम छोड़ दो, और या फिर आओ भिड़ जाते हैं। क्या करेगा लास्ट में? भिड़ जाते ना, बस फिर एक बार भिड़ने की ताकत रख लिए ना, फिर टेंशन नहीं लेने का, फिर जो होगा वो होगा, जो भी हो सो हो। राउंड 2 का 16, पहले डायग्राम तो बना लेते मस्त। आहा, प्रोजेक्टाइल, क्या बात, कुछ तो भी प्रोजेक्टाइल की बात है। सर ये क्या है? पता नहीं, टीले जैसा लग रहा है, टीला। यहां कुछ है, ये रहा है नीचे। पता नहीं, मैंने सम पढ़ा नहीं है। मैं फिलहाल तो सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं। लेंथ दिया है, मतलब कुछ लगता है ये कुछ होगा। बॉब है, ऑलराइट, बॉब द बिल्डर। अच्छा, समझ में आया क्या हो रहा है। फिर भी अटकलें नहीं लगाते हैं, पहले सम पढ़ते हैं। अब बुलेट ऑफ मास है, अच्छा यहां से बुलेट फायर किया, फायर्ड विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ओके, एट द हाईएस्ट पॉइंट। भाई ए हाईएस्ट पॉइंट हैगा, ओके। इट कोलाइड्स हेड ऑन विथ अ बॉब, कितना मास है? 3m, बॉब का मास 3m, कनेक्टेड विथ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। अच्छा ये स्ट्रिंग है, ये बॉब यहां से लटकाया है, ये लेट अस से P है पॉइंट, यहां से पेंडुलम लटकाया है, ये बॉब है, इसकी लेंथ है 10/3, ये बॉब का मास 3m। और जैसे गोली ठुकती है ना उसके अंदर कोलिजन, स्ट्रिंग मूव्स टू एन एंगल 120, ओके। व्हाट इज द एंगल थीटा? ऑलराइटी, चल बेटा, कोई करेगा मेरे साथ? सबसे पहले प्रोजेक्टाइल को यहां से 50 मीटर पर सेकंड से फायर किया विद एन एंगल थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे बॉब को टकराने से पहले इस गोली की स्पीड कितनी होगी श्रीमान? एनीबडी टेलिंग मी? प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है उसकी? कभी कभी तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्टाइल किए क्या किए, ये V0 है, ये थीटा है, डोंट यू अग्री? इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली स्पीड होगी, वर्टिकल नहीं होगी, सो दिस इज V0 cos थीटा। कोई बोला ही नहीं अब तक, मेरे को मजबूरी में बोलना पड़ा। बाकी इतने प्रोजेक्टाइल के आशिक हैं यहां पे, मैं भी उनमें से एक हूं। पर जैसे मैंने बोला हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट ए स्पीड ऑफ बुलेट 50 cos थीटा, और वो इस स्पीड से अब बॉब को टकराता है, बरोबर। तो इनिशियल मॉम मतलब मोमेंटम बिफोर द कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2। u1 तो ये रहा 50 cos थीटा, जो गोली का है स्पीड इससे टकराने से पहले। बॉब क्या है? रेस्ट पे है। भाई ये बॉब यहां पे रेस्ट पे है कि नहीं है? हाँ या ना? ओके, तो m1 वो गोली का मास कितना है? m इंटू 50 cos थीटा, ये इक्वेशन हमारा 1। एंड आफ्टर कोलिजन बुलेट
gets embedded in the bob. So final mom, भाई कोई चीज किसी में घुस जावे तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जावे? Isn't it m1 plus m2 into v? Is this agreeable? Yes, sir. Yes, sir. m1 कितना है? छोटा m. m2 कितना है? 3m. चलो अच्छा है, चलो पी आई और पी एफ मिल गया. डू यू थिंक आई कैन इक्वेट बोथ ऑफ दम? Yes, sir. चलो अच्छा है. एज टोटल मॉम, Total momentum is conserved. मुझे पता नहीं इससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा. शायद कोई रिलेशन मिलेगा, कोई रिश्ता. ये रिश्ता क्या कहलाते हैं? 50m V is equal इज पी एफ क्या है? to V. ढीच. काटो सर. काट दिया बेटा, काट दिया. एंड 50/4, 50/4 मतलब 25/2. साढ़े बारह भी लिख, 12.5 भी लिख सकते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं अपने को. अच्छा, अब अगर कोई पेंडुलम है और किसमें गोली मार रही है और ये वूप करके ऊपर जा रहा है, डोंट यू अग्री द टोटल काइनेटिक एनर्जी हियर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी? सो फ्रॉम ए टू, इसको बी कहते हैं, फ्रॉम ए टू बी एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 plus m2 into v square, and at point b, Potential energy. ए भाई पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? M1 plus M2 G है. ये हाइट कितनी होगी है अबव द ग्राउंड, ये जानना जरूरी है. Yes, sir. अबव दिस पॉइंट है. हाँ सर. बी मतलब इतना आया, मुझे इतनी हाइट चाहिए. इतनी कैसे लाएंगे? टन 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 टन. क्वेश्चन डाल के वो और प्लस कर लेंगे. कौन सा इक्वेशन डालेंगे? क्या डालेंगे? हाइट का, हाइट एट मैट साइड. हाँ, जो भी प्रोजेक्ट. तेरे को ये नहीं चाहिए. सर मैं बताऊं. हाँ कौन था वो? बताओ बताओ. सर वो ऊपर जो मतलब एल तो अपने को पता है, उधर से अपने को 120 माइनस 90 करके उधर का एंगल मिल जाएगा. वेरी गुड वेरी गुड. कौन है ये? कार्तिक. वेरी नाइस कार्तिक. कौन सी हाइट फाइंड करनी? तेरे को पता ही नहीं कौन सी हाइट फाइंड करनी है. मैं कब से दिखा रहा हूं, ये फाइंड करनी है. अच्छा ये पूरा मेरे को ये फाइंड करना है. ये इतना इतना तो मेरे को पता है. एल इतना कितना होगा? Isn't this L cos 30 and this is L? sin 30. My God. But is this absolutely agreeable, gentlemen and ladies? Sir, please Yes, one sir. second. ये L है, What's wrong? ये L है. इतना कितना होगा? L cos 30 एंड इतना कितना होगा? हाँ सर इधर समझ में जाता है. हाँ मुझे पी क्यू चाहिए. अच्छा सर मैं वो ग्राउंड लेवल से 30 पॉइंट तक. ग्राउंड लेवल की जरूरत ही नहीं है. तेरा बॉब इनिशियल कोलिजन से पहले यहां पे था, अब वो यहां पे जा रहा है, तो तेरे को सब कुछ यहीं से कंसीडर करना है. ये तेरा रेफरेंस लेवल हो गया. पी के अब ये डायग्राम क्लियर है? Yes. दिस इज एल cos 30, दिस इज एल sin 30.
सो पी क्यू दिस मच इज एल साइन 30. कोई शक एनीबॉडी? भाई कोई कम वक्त मारा बोल ही नहीं रहा. ए क्यू No sir, sir. which is AP plus PQ which is L plus L sin 30. Sin 30 is half, तो L plus L by 2. Yes sir. 3L/2. चलो भाई, thus potential energy at B is M1 plus M2 into G 3L by 2. I think मुझे इन दोनों को इक्वेट करना मांगता ही है. इक्वेटिंग 1 एंड ये है 4. Half कर लिया sir. अरे तू हाफ काटने पर हमेशा उतारू रहता है. M1 plus M2 भी कर लिया sir. चलो अच्छा है. M1 plus M2 कटा, 2 कटा. I think I'll take this much. डायग्राम हो जाएगा सर. डायग्राम का क्या करोगे? वैसे तो फट रही थी डायग्राम से, है जी. वही तो सर. अब डायग्राम लाग रहा है प्यारा प्यारा, है. सवाल करते हो पांडे जी. ओके, 2 कट चुका है. अच्छा भाई, V की जगह 25/2 cos थीटा लगा दूं? Yes sir. पर मेरे को उससे फायदा क्या होगा? मेरे को क्या मिल रहा है उससे? जी मिल रहा है सर. एक सेकेंड. है ना हमारे पास, तो हमें cos थीटा मिल जाएगा. अच्छा, एल की वैल्यू है ना. मैं वही सोचा, ये एल कब से परेशान कर रहा है मेरे को. एल का करूं क्या? 10 into 10 100. अरे तो क्या है भाई साहब, रूट ले लो ना महाराज. भाई 100 का रूट ले लिए हैं तो 10 हो जाएगा. तो cos थीटा इज 20/25. अब 20/25 मतलब 4/5. सो थीटा इज cos इनवर्स 4/5. चेक. Yes sir, option Yes sir. हाँ, बस आप लोग वही करो, ऑप्शन चेक करो. आंसर तो मैं ले आता हूं. ये गलना ठीक है. हाँ सर. मेरे को एल ने परेशान कर दिया. मैं बोला एल कहाँ डालू यार, फिर पता चला एल की वैल्यू दी हुई है. ओके, तो 10/3 डाला, 3 कट किया. जी को 10 into 10 100 का रूट इज 10 अगेन, एंड ये कर लिया. आंसर आपके सामने है. बरोबर है, कोई दिक्कत? वी आर गुड. ओके ओके, मैं राउंड 2 का 53 करना चाहता हूं. मेरे पास थोड़ा टाइम है. राउंड 2 का 53 प्लीज. Yes sir. यस सर. इसका मूल मंत्र है यस सर. राउंड 2 का 53 देखें. अब मैं कोई बोलूंगा नहीं कि ये मस्त सम है या ये जबरदस्त सम है या बाबूराव मस्त है या नहीं है. आप अपने हिसाब से देखो. इट इज ऑल ब्लैक. It's all black on white paper, black ink on white paper. Okay, round 2 का 53. Let's find out क्या कहता है. कहता है पल पल तुमसे. A bullet of mass 20 ग्राम. अच्छा, बुलेट आजकल बड़ी गोलियां चल रही हैं. 20 ग्राम. Moving with a speed, let us call it u1. ओके, कोलाइड्स विद अ ब्लॉक ऑफ मास. कितना मास है ब्लॉक का? 4 किलो. हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग. ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ब्लॉक? ओ माय गॉड, ये फिलहाल तो 0 पे चल रहा है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ब्लॉक इफ द ब्लॉक राइजेस टू अ हाइट ऑफ 0.2 मीटर आफ्टर द कोलिजन? Yes sir. खेल समझ में आया? आया सर. इस बार आ गया. ये बुलेट है. पूरी जा रही है. इसका डायग्राम के बिना नहीं समझ आता. तो अब इतना टाइम हो गया अपने को साथ में.
you know, the first thing that you do is you imagine the diagram, and once you imagine the diagram you try to make it on a piece of paper कि ये क्या कहता होगा. So it's like this. यहां पे एक ब्लॉक लटकेला है, कोलिजन के पहले की परिस्थिति, फिर गोली घुसती है और ब्लॉक बिल्कुल सही, एंड फिर गोली अटकती नहीं है, गोली यहां से बाहर निकल रही है. श्रीमान भाई जो हो रहा है उसको होने देना पड़ता है नहीं तो नहीं कर सकते ना. ओके, गोली ठुकने से ब्लॉक ऊपर गया, एंड ब्लॉक ऊपर गया और गोली बाहर निकली. ये गोली के बाहर निकलने की स्पीड है v1. ओके, नाउ सिचुएशन समझ में आ गई? कोई बड़ी बात नहीं है, वही इनिशियल मॉम इज इक्वल टू फाइनल मॉम लगाएंगे और मैटर को क्लोज करेंगे. इनिशियल मॉम पी आई m1 u1 प्लस m2 u2. अब ये जो u2 है वो तो 0 है, तो m1 u1 20 ग्राम, दैट इज 20 इंटू 10⁻³ kg में कन्वर्ट किया. u1 कितना है? 600. अच्छा 1 2 3 3 0 काट दिए, 6 दूनी. भाई फाइनल मॉम इज वेरी इंटरेस्टिंग. फाइनल मॉम, let us say final mom m1 v1 plus m2 v2. अब m1 बुलेट 20 ग्राम इंटू v1 प्लस मास कितना है? ब्लॉक 2 का 4. अब कोई बोलेगा सर आप इन दोनों को इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, हमको v1 चाहिए, ठीक है, तो v2 नहीं है. यस सर. कैसे लाएं आप बताओ? टोटल एनर्जी इज इक्वल टोटल एनर्जी कंजर्व करके. कैसे कैसे? सर जब ब्लॉक ऊपर जाएगा तो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो वेरी गुड, वेरी गुड. इंग्लिश में क्या बोला है? लेट अस से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. फॉर ब्लॉक काइनेटिक एनर्जी, इसको हटा रही, kinetic energy at A, isn't it half m2 v2 square, and potential energy at B, as Krisha rightly said, mgh, and kinetic energy potential energy को क्या करें? तो to cut a long story short, v2 is root of 2gh. आप इसको एज अ पॉइंट भी ले सकते हो, एज अ टिप भी ले सकते हो कि जब भी कोई चीज इतना हाइट कवर कर रही है तो v2 और हाइट में क्या इक्वेशन होगा? तो v2 इज रूट ऑफ 2gh. एक काम करो, ये v2 को यहां लगा डालो फटाफट. सर आप ही लगा दो. हीट में बोलेगा सर आप ही लगा दो ना. हाँ बेटा 4, एंड इधर वैल्यू पुट कर ही लो. 2 इंटू 10 इंटू 0.2 है ना. 2 इंटू 0.2 इज 0.4. 0.4 इंटू 10 इज 4. 4 का रूट कितना? 2, एंड 2 4s आर. थैंक यू फॉर नॉट सेइंग 8. No, I got it. And now initial mom और final mom को मिला लो एंड खेल खत्म करने का. भाई क्या उड़ाऊं? ये इनिशियल मॉम उड़ा देता हूं. PI is 12, याद रखना. So what I've done is, as total mom is conserved, so PI is PF. PI 12 था, यहां पे लिखा था मैंने. PF ये रहा, और यहां से 8 को 12 में से माइनस कर दिया तो 4 आ गया. 4 डिवाइड बाई 20 इंटू 10⁻³ -3 को ऊपर चढ़ा दिया, सो दिस बिकम्स 4000 ओवर 20. टक टक काटा,
400 बाई 2 विच इज 200 मीटर पर सेकेंड. इज दिस एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल? कोई शक? ऑलराइट, तो अब मैं आई थिंक ऐसा कभी भी बुलेट और ब्लॉक वाला है तो ऐसा आइडिया लेने का ना एब्सोल्यूट आइडिया तो यही लोगे, बस इंपॉर्टेंट यही है कि क्या बुलेट जो है वो ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो रही है या बाहर निकल रही है. मैंने बाहर निकलने वाला फंडा भी दिखाया और एम्बेड होने वाला भी फंडा दिखा दिया अपन ने, है ना, दोनों देख लिए हमने. ओके, मैं करना चाह रहा मैं की करा, मैं राउंड 1 का 55 करना चाह रहा हूं. लास्ट आई थिंक लास्ट आइटम ऑफ द डे. मैं ये नहीं करवाऊंगा तो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी. क्योंकि मुझे बहुत प्यारा सम है ये. अब जैसे ही मैं कुछ कमेंट करूंगा ना सम पे, लोग चिल्लाने शुरू कर रहे, सर इसका मतलब ये गंदा है. उनको मेरी बात पे इतना भरोसा है ना कि मैं जैसे ही बोला कि ये अच्छा सम है, तुरंत मन में सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि मन है कि मानता नहीं. अरे अरे क्या तेरा नेटवर्क कट गया तो कुछ पता ही नहीं चला तू क्या बोला. राउंड 1 का 55 जी महाराज. ओके भाई, राउंड 1 का 55 बहुत ही प्यारा सब. अ स्मूथ स्टील बॉल स्ट्राइक्स अ फिक्स्ड स्मूथ स्टील प्लेट एट एंगल थीटा विद द वर्टिकल. ओके, ए थोड़ा स्मूथ स्टील दा प्लेट बड़ा स्मूथ है. ओके, ये टेढ़ी है, बिल्कुल टेढ़ी है सर, पर जो भी है मेरी है ये. एंड स्मूथ स्टील का बॉल, ये बॉल आया, कितनी स्पीड पे आ रही है कुछ बोला नहीं है, लेट्स कॉल इट यू. आया और टकराया कितने एंगल पे? थीटा. एंड विद द वर्टिकल. ओके, विद द वर्टिकल. ओके, if the coefficient of restitution between plate and ball is E, then the angle at which rebound will take place. Rebound को rad में बनाता है, rad for rebound. Let's call this V and this angle is phi. मुझे एंगल phi फाइंड करना है. जिस एंगल पे रिबाउंड हो रहा है. ठीक है अच्छी महाराज. सबसे पहला तो क्या आपको ये डायग्राम समझ में आया? दिस इज अ सरफेस. इस पे एक बॉल आ रहा है, ढप करके टकरा रहा है, लेट अस से स्पीड u के साथ. इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एंड ठक करके रिबाउंड हो रहा है. इस रिबाउंड की स्पीड है v एंड phi इज द एंगल एट विच इट रिबाउंड्स. द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e. यू आर सपोज टू फाइंड phi. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कोई भी चीज किसी सरफेस को टकराती है तो वो सरफेस किस दिशा में इंपल्स प्रोवाइड करेगा? सपोज ये बॉल आया, इसको टकराया और ऊपर गया, तो ये सरफेस ने किस दिशा में इंपल्स प्रोवाइड किया? इस दिशा में. यस सर. ये फिर से एक सरफेस, ये बॉल आया, टकरा के यों गया, सरफेस किस दिशा में इंपल्स प्रोवाइड कर रही है? सर उसी दिशा में कर रही है. बॉल चाहे ऐसा आके ऐसा जाए या ऐसा आके ऐसा जाए, इंपल्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. डू यू रिमेंबर वर्क एनर्जी एंड पावर में हमने ये देखा था, देयर वॉज दिस वॉल एंड देयर वॉज दिस बॉल कमिंग एंड देन गोइंग. impulse was being provided in this direction. दूसरे ही केस में there was this wall and there was this ball, वो ऐसे जा रहा था, फिर भी impulse तो इसी डायरेक्शन में प्रोवाइड हो रहा था. डू यू अंडरस्टैंड? सो हमेशा याद रहे, impulse will always be provided in the direction perpendicular to the surface.
All right, you want me to write this in red? Impulse is always provided in a direction perpendicular to the surface. ओके अच्छा, अब इसका ये कंपोनेंट कौन सा होगा? ये वाला, isn't it u sin theta? Yes, sir. Sin theta. एंड इसका ये कंपोनेंट कौन सा होगा? V sin phi. डू यू थिंक इधर इस तरफ कोई इंपल्स है? नहीं. इस तरफ कोलिजन का कोई पावर है? नहीं. सो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो इंपल्स. सो इसका इनिशियल्स कितना है? ये u sin थीटा विल बी सेम एज. V sin phi. Is this absolutely understandable? Okay, हम इंपल्स देख रहे हैं ओनली इन दिस डायरेक्शन. अच्छा, इसका ये वाला क्या है? और इसका ये वाला, ये माइनस है ना? हाँ, sir. एंड वी, Cos phi. वेरी गुड. तो इससे क्या, अच्छा, ऑल दिस डायग्राम्स आई कैन टेक ऑफ नाउ. Take it off, sir. थैंक यू सो मच बड़ी. Now, along vertical direction, impulse is provided and collision occurs. अच्छा, सबसे पहले मैं बॉल को नंबर 1 दिया है, सरफेस को नंबर 2 देता हूं. फॉर बॉल, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड एंड व्हाट इज द फाइनल स्पीड? V cos phi. फॉर सरफेस, भाई सरफेस की इनिशियल स्पीड कितनी? 0. फाइनल स्पीड कितनी? 0. डू यू हैव द इक्वेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? Yes, sir. डोंट. Is equal to E. सिंपल इक्वेशन जो बदल दे आपकी दुनिया. V2 ये रहा, V1 ये रहा, U2 ये रहा, U1 ये रहा. आओ राजा. V2 कितना है? 0. V1 V cos phi. U2 0. U1, Minus U cos theta. भाई माइनस माइनस से संभल के रहना. Plus U1 ऑलरेडी माइनस है. अच्छा, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस. plus ही होगा, sir. अच्छा जी. मुझे क्या चाहिए? किसका? 5 मतलब ओके. नंबर क्या है सर? नंबर, अच्छा, आपको 1 नजर आ रहा है? V sin phi is U sin theta. 2 नजर आ रहा है? V cos phi is EU cos theta. डिवाइडिंग 1 and 2. V sin phi by V cos phi Cos phi. is, V sin phi क्या है? U sin theta. U sin theta upon U cos. जरा भी गड़बड़ नहीं चाहिए. V कट जाना है, U कट जाना है. सो tan phi is sin theta by cos theta. Tan theta by E. So can I say phi is tan inverse? I think now is the time to check the answer. Yes, sir, option B. And as we rightly say, B हो या C, Sanuki. Okay. Sanuki, sir. Answer is there, nothing to fear. Okay.
तो यहाँ पे अपना कोलिजन वगैरह खत्म हो जाता है एंड अब नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक रोटेशनल मोशन शुरू किया जाएगा. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. और तब तक आप ये सारे सम्स प्रैक्टिस करें आज ही एंड होमवर्क आ जाएगा. होमवर्क भी देख देख के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स टेल मी. ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय.